Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is on portfolio hedging with futures. So let us see data given in this scenario. So we are given Focus Financial Services Limited KFSL is engaged in investment in financial services for the past 10 years. KFSL manages the portfolio of investors who are also called clients, so which are hedged by entering into futures. The following information is available for some of the portfolios of clients managed during current financial year. So first of all, we are given equity portfolio for client Johan. So Johan has bought 10,000 shares of X Limited at a price of ₹22 per share, whose beta value is 1.5, and has sold 5,000 shares of Y Limited at a price of ₹40 per share, whose beta value is 2. So he obtains a complete hedge by Nifty futures at rupees 10,000 each, and he closes out his position at the closing price of the next day. So when the share of X Limited dropped by 2% and the share of Y Limited has appreciated by 3% and Nifty futures dropped by 1.25%. The second, we are given a balanced portfolio of a client Peter. Peter has portfolio consisting of equity investment of rupees 9 lakhs and cash and bank balance of rupees 1 lakh. The equity portfolio has beta of 1.1. The index futures are selling at 4300 level. KFSL suggests that index will fall at at most by 10%, and one index future is of 50 units. So number third, we are given again balanced portfolio of client Mike. So Mike is having in its portfolio shares worth rupees 85 lakhs at current price and cash rupees 15 lakhs. The beta of share portfolio is 1.6. After 3 months, the price of share dropped by 3.2%. So now we are given different MCQs like number 1. So we have to determine overall profit और loss to जोहन. तो आपको जैसे पोर्टफोलियो दिया है जोहन का, तो उसमें आपको देखना है हाउ मच गेन और लॉस. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. सो नंबर 1 MCQ. This one is our related with portfolio of client is जोहन. इसमें देखो आपको ये डिटरमिन करना है हाउ मच इज प्रॉफिट या लॉस टू जोहन. जोहन हैज बोट शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. सो फर्स्ट वी हैव शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. So what is the position this one? So this is our long position because your shares are purchased here. So 10,000 shares of rupees 22. So what is the value of investment? So 10,000 into 22. So this will be rupees. So 2,20,000. And its beta is also given. Beta of shares of X Limited is 1.25. Second, we are given that so Johan has sold 5,000 shares of Y Limited at price of ₹40. यानी कि shares of Y Limited. So this is our short position. So amount will become, so these are 5,000 shares at the rate of ₹40. So amount is rupees 2 lakhs. And its beta is also given. So it has a beta of 2. So then we are given that he obtains a complete hedge by Nifty futures at rupees 10,000 each. Then he has closed his position at the closing price next day. तो आप देखिए आपको hedging कितनी करनी है. तो what is the value of long hedge? जो आपकी long position है तो उसकी देखो कितनी वैल्यू है. तो दिस इज अवर 220 into 1.5. So this will be 3,30,000. Then what will be our value of a short hedge? जो आपकी short position है. So this value is 4 lakh. Then you can get what is our net position. Net आपकी short is more than long. So this is our net short position. This is rupees 70,000. तो जब आपकी short position है उसको hedge करना है अपने future से, तो then we will buy futures. It means we have to enter into long futures for perfect hedge. इसकी देखो वैल्यू बन जाएगी ₹70,000 के आपको फ्यूचर्स एंटर करने हैं. और आपको ये भी मेंशन किया है फ्यूचर का प्राइस है आपका ₹10,000 ईच. तो डिवाइड कर दीजिए ₹10,000 से. तो यू विल गेट 7 फ्यूचर्स आपको एंटर करने हैं.
So now investor closed his position in next day when prices are given. अब नेक्स्ट डे देखो एक्स का प्राइस ड्रॉप हो गया है 2%, वाई का प्राइस अप्रिशिएट हो गया है 3% और निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं वो ड्रॉप हो गए हैं 1.5%। तो अब देखते हैं उसमें कितना गेन या आपको लॉस हो रहा है। तो प्रेजेंट देखो आपने प्रेजेंट शेयर से एक्स से बाई किए थे और वाई के आपने सेल किए हैं। तो प्रेजेंट आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है ₹20,000। दिस इज अवर नेट इन्वेस्टमेंट। दिस इज ₹20,000 आपने इन्वेस्ट किया है। अब देखिए आपको कितना कैश मिलेगा व्हेन प्राइसेस हैव चेंज्ड। सो लेट अस सी नेक्स्ट डे। सो व्हाट इज अवर सेल प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट थी 220 और आपको मेंशन किया है जो क्लोजिंग प्राइस है एक्स का दिस है कि ग्रोथ बाय 2%, तो माइनस कर दीजिए 2%। तो दिस विल बी अवर सेल प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सो 220 माइनस 2%, 215,600। अब ये आपकी शॉर्ट शेयर्स हैं वाई के सेल कर रखे हैं, इसको बाय करना पड़ेगा। सो व्हाट इज योर बाइंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ वाई। तो अमाउंट ऑफ वाज ₹2 lakhs। वाई में आपके शेयर्स की वैल्यू है ₹2 lakhs। अब इसका प्राइस देखो राइज हो गया है जिसे जो बाई 3%, तो प्लस कर दीजिए आप 3%। तो अब आपको बाय करना पड़ेगा 206,000। तो ये आपका सेल प्राइस है, ये बाइंग प्राइस है। तो इट मीन्स नेक्स्ट सेल प्राइस आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सेल प्राइस देखो आपको मिल रहा है जिसे 215 600 माइनस 206 जिसे 9600। सेकंड के बाद आपके पास निफ्टी के फ्यूचर्स हैं जो आपने बाय किए हैं। अब फ्यूचर्स पे आपके जो है ड्रॉप हो गए हैं बाय 1.5%, उसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो लेट अस सी हाउ मच इज लॉस इन निफ्टी फ्यूचर्स। उसकी वैल्यू थी 70,000 और उसमें आपको लॉस हो रहा है 1.5%, विच इज 1050। तो एक तरीके से ये आपकी नेट सेल आपको मिल रही है। तो दिस वन इज कमिंग सो 8,550। तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट की 20,000, अब आपको नेट सेल मिल रही है 8,550। तो इतनी डिफरेंस जो है आपका वो गेन या लॉस आ जाएगा। तो इसमें आपको हो रहा है नेट लॉस। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट नेट लॉस टू इन्वेस्टर। 20,000 आपकी मनी इन्वेस्ट हुई थी और आपको रियलाइज हो रहा है 8,550। तो दिस इज 11,450। जिसमें नहीं नेट लॉस टू इन्वेस्टर। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव सेकंड MCQ। इन दिस केस वी हैव टू डिटरमिन हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स पीटर शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हेजिंग सो दैट पोर्टफोलियो बीटा इज रिड्यूस टू 0। तो आपको पीटर का पोर्टफोलियो मेंशन किया था। पीटर है कि पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग इक्विटी 9 लाख एंड कैश इज 1 लाख। इक्विटी का बीटा आपको दिया है 1.1 और इंडेक्स के फ्यूचर सेल हो रहे हैं 4300 लेवल एंड इट इज गिवन दैट इंडेक्स में फॉल एट मोस्ट बाय 10% एंड वन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 50। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स वी शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हेजिंग सो दैट पोर्टफोलियो बीटा इज रिड्यूस टू 0। तो इसमें पहले आपको प्रेजेंट पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट अस से प्रेजेंट पोर्टफोलियो बीटा। अब इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इक्विटी और एक आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है कैश। अमाउंट आपको दिया है रुपीज़ में। इक्विटी में आपकी इन्वेस्टमेंट है 9 लाख और कैश में है आपकी 1 लाख। इट मीन्स यू गेट वेट 0.9 0.1। फिर बीटा इज गिवन। बीटा ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट सो दिस इज गिवन टू बी 1.1 एंड व्हाट इज बीटा ऑफ कैश। कैश में कोई रिस्क नहीं है तो उसका बीटा हमेशा 0 होता है। It means we have a present beta of a portfolio. So this is 1.1 into 0.9. So this will be 0.99. अब आपको कैलकुलेट करने हैं व्हाट इज टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। ये है आपकी 10 lakhs टोटल वैल्यू। देन वी हैव टू डिटरमिन सो व्हाट विल बी नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स टू बी एंटर्ड फॉर पोर्टफोलियो बीटा टू बी रिड्यूस टू 0। तो इसका जो फार्मूला है नंबर ऑफ फ्यूचर्स है the number of index futures so that portfolio beta reduce to 0. Its formula is what is value of portfolio into beta of portfolio minus desired beta and divided the value of one future which is called FT। तो desired beta है आपका 0
which means present बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो की 10 lakhs, तो इनटू बीटा इज 0.99, वैल्यू वन फ्यूचर 4300 इंटू 50, तो दिस विल बी अवर नंबर ऑफ फ्यूचर्स जो आपको एंटर करने हैं। तो 9,90,000, लेकिन से वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर 4300 इंटू 50, दिस इज 215,000, so 990 divided by 215,000, the number of features are 4.605, तो ये आपके नंबर ऑफ फीचर्स आ जाएंगे विच वी हैव टू एंटर फॉर परफेक्ट है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि उससे कितना गेन या लॉस हो रहा है। जैसे आपको मेंशन किया है कि इंडेक्स में फॉल एट मोस्ट बाय 10%, तो इंडेक्स आपका फॉल कर सकता है, तो आपको मेंशन किया है परसेंटेज ऑफ फॉल इन मार्केट 10%। अब बीटा की डेफिनेशन होती है जो इक्विटी का बीटा है, बट परसेंटेज चेंज इन इक्विटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट, तो इतनी मैक्सिमम कितना फॉल होगा अब आपका परसेंटेज फॉल इन इक्विटी, ये बन जाएगा बीटा 1.1 है इक्विटी का इनटू परसेंटेज फॉल इन मार्केट, तो दिस विल बी 11%। तो आप देखिए रिस्क आपने जीरो कर दिया है, इसमें मीन्स हाउ मच गेन और लॉस। अब आपका प्राइस फॉल कर गया है, तो अब देखो इक्विटी की वैल्यू रह जाएगी, वो विल बी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। इक्विटी वैल्यू है 9 लाख, उसमें माइनस हो जाएगा 11%, प्लस कैश की वैल्यू है अब आपकी 1 लाख, लेकिन सी व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। आप सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना लॉस या गेन हो रहा है, तो दिस विल बी 9 लाख माइनस 11%, तो प्लस 1 लाख, सो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो की 901, ओरिजिनल से आपकी 10 लाख, इसमें से आपको लॉस हो रहा है इसमें 99,000। तो जब आपने अपनी परफेक्ट हेजिंग की है तो आपको निफ्टी में गेन हो जाएगा। सो हाउ मच ये गेन इन निफ्टी, अब ये निफ्टी से आपके ये आपने सेल कर दिए हैं, सो ये गिव बारे शॉर्ट फ्यूचर्स। अब प्राइस फॉल हो जाएगा निफ्टी का 10%, इसमें वी विल बाय, उसमें आपको गेन हो जाएगा। तो गेन इज हाउ मच, तो आपकी जो टोटल वैल्यू है फ्यूचर्स की निफ्टी की, जैसे जो 4.605 फ्यूचर्स हैं आपके, और एक फ्यूचर की वैल्यू है 215,000 इंटू 10%, तो ये आपका गेन आ जाएगा। तो 4.605 इंटू 215,000 इंटू 10%, तो दिस इज ऑल्सो 99,000, तो राउंड फिगर में है, तो मीन्स नेट लॉस जो है आपका वो आपका जीरो हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड जो परफेक्ट है। So now you can see which option was the correct answer was the option number C. So next we have MCQ number 3. In this they are asking determine the portfolio beta after 3 months if Mike on current date goes for long position on ₹100 lakhs in Nifty future से। तो अब देखो माइक का हमें जैसा दिया है, माइक का पोर्टफोलियो है, उसमें शेयर्स की वैल्यू है 85 लाख एंड कैश इज अबर 15 लाख। तो लेके सी पोर्टफोलियो ऑफ माइक, तो वी आर गिवन इक्विटी शेयर्स, तो किसी ये रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में 85 लाख, एंड कैश बैलेंस इज 15, तो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो इज 100 लैक्स। फिर आपको मेंशन किया था बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो की 1.6 है, बीटा इज आल्सो गिवन फॉर दिस शेयर 1.6 है, एंड वी आर आल्सो गिवन किया था आफ्टर 3 मंथ्स प्राइस ऑफ शेयर से ग्रोथ बाय 3.2%। अब आपका जो आफ्टर 3 मंथ्स है, so after 3 months, so price of these shares falls by 3.2%, तो शेयर का प्राइस फॉल कर गया है। अब आपको डिटरमिन करना है व्हाट विल बी पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ्स से, और ये भी मेंशन किया है आपको दैट माइक ऑन करंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन ऑफ ₹100 लाख इन निफ्टी फ्यूचर्स, एंड माइक हैज लॉन्ग निफ्टी फ्यूचर्स दैट इज ₹100 लाख। तो इसमें से बीटा के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा की डेफिनेशन होती है कि कितना चेंज आ रहा है पोर्टफोलियो में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट। अब बीटा प्रेजेंट बीटा यही है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इक्विटी में भी चेंज आपको दिया है 3.2% फॉल कर रहा है। तो लेकिन से इक्विटी बीटा की डेफिनेशन क्या है, इक्विटी बीटा जिसे जो परसेंटेज चेंज इन इक्विटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट। इक्विटी का चेंज 3.2% है, बीटा आपको दिया है 1.6, इसमें परसेंटेज चेंज इन मार्केट आ जाएगा विच इज परसेंटेज फॉल इन मार्केट, जैसे 3.2 divided by 1.6, so this is coming 2%।
तो इट मीन्स निफ्टी में आपकी लॉन्ग पोजीशन है, तो जब निफ्टी का प्राइस फॉल करेगा 2% तो इसमें आपको लॉस हो जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट इज लॉस इन निफ्टी फ्यूचर्स। 100 लाख के फ्यूचर्स हैं आपके पास, तो दिस विल बी 100 इंटू 2%। इट मीन्स रुपये के 2 लाख का आपका लॉस हो जाएगा। तो अभी ये 2 लाख का लॉस है वो आपकी कैश की पोजीशन में से सेट ऑफ हो जाएगा। तो व्हाट विल बी कैश बैलेंस, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर 3 मंथ्स से। It means after set off of loss in Nifty, cash balance will be equal to 15 minus 2. That will be रुपये की 13 lakhs। अब देखिए इक्विटी की वैल्यू कितनी रह जाएगी। इक्विटी का प्राइस फॉल कर गया 3.2%। वट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, दिस इज 85 minus 3.2%। So equity value will remain 85 minus 3.2%, 82.28। तो यही वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 3 मंथ्स। तो दिस वन इज 95.28। पहले थी आपकी 100, तो उसमें आप देखिए कितना चेंज आ रहा है। वट इज परसेंटेज फॉल इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। सो 100 में से माइनस ये जिस 4.78%, 72%। एंड वट विल बी अवर रिवाइज बीटा। बीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज फॉल आ गया पोर्टफोलियो में। एंड वट इज परसेंटेज फॉल इन मार्केट। मार्केट मीन्स जो निफ्टी है, निफ्टी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है। परसेंटेज फॉल है आपका 2%। तो इट मीन्स न्यू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो that is percentage change in portfolio divided by percentage change in market. So 4.72 divided by 2. The new portfolio beta will be 2.36. So now you can see which option is correct. In this case, answer is option number 8. So in this lecture, we have discussed case scenario based on portfolio hedging with futures. फर्दर टॉपिक वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से। वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।